हॅलो गाईज, कसे आहात तुम्ही? आय होप तुम्ही मजेत असणार. आज आमच्या पनवेल कोर्टामध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲडव्होकेट महेशजी वासवाणी साहेब येणार आहेत. हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात त्यांची प्रॅक्टिस आहे. आज ते कायदेविषयक लेक्चर आहे त्यांचा. तर सर्व वकील मित्र उपस्थित राहणार आहेत. तर आज संध्याकाळी 5:30 वाजता आयोजित केलेलं आहे. तर चला मग मी तुम्हाला संध्याकाळी प्रोग्राम चालू झालं की तुम्हाला मी दाखवतो पूर्ण लेक्चर. ओके, त्या पद्धतीने आपण आज व्याख्यानमाला विविध विषयांना घेणार आहोत. त्यातला पहिले हा व्याख्यानमालाचा आज कार्यक्रम करतोय. त्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ महेश वासवानी सर हे आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. त्याचबरोबर बरेचसे त्यांनी केस लॉज आणलेले आहेत आणि त्यांचं जे काय हायकोर्टातलं अनुभव आहे तो आपल्याला शेअर करणार आहे. वेगवेगळ्या विषयांवर वेगवेगळे तज्ज्ञ आपल्याला बोलवायचे आहेत. आपल्या पनवेलमध्ये सुद्धा बरेचसे सिनियर्स आहेत जे क्रिमिनल, सिव्हिल, रेव्हेन्यूमध्ये प्रॅक्टिस करतात आणि त्यांचासुद्धा जे आमच्या ज्युनियर काळामध्ये आम्ही बघितलेलं आहे ते तुमच्यासुद्धा उपयोगी यावं, त्याचासुद्धा आपण नक्कीच उपयोग करून घेऊ. आता ह्या व्याख्यानमाल्यासाठी आपण मागच्या AGM-मध्ये जे काही आपले 8 लोकांना हे केलेलं आहे की त्यांनी बाबा आपलं जे काय Respected Mahesh Vaswani sir, Senior Advocate, Mumbai High Court, Supreme Court. Respected Manoj Bhujbal sir, President of Panvel Bar Association. Telge sir, Dhanraj Tokre sir, Mundkar sir, Pragati Mari madam, and Seema Bhoin and entire law fraternity. It gives me immense pleasure today to stand before you and welcome our senior advocate Mr. Mahesh Vaswani. In short, I would like to brief you about him as follows. Advocate Mahesh Vaswani sir, who has earlier been associated with the late legal legend Ram Jethmalani, is here to give a lecture on bail and Section 65B of Evidence Act. Mahesh Vaswani has been practicing regularly at the Bombay High Court and Honorable Supreme Court of Criminal Law. He also conducts trials at Sessions Court and Magistrates Court as well. He has also been known to be sharing the latest and important Supreme Court and High Court judgments in over 100 WhatsApp groups. That's a great. I feel that we should give him a big round of applause for that. He also has several of his own super lawyers groups on WhatsApp. Mahesh Vaswani sir also takes up many cases of poor people. I can say that pro bono cases, and always helps advocates with judgments whenever he is approached. He also appears free for cost for advocates in any court, including this Honorable Supreme Court of India. Mahesh Vaswani sir has his office established near Bombay High Court at Mumbai and is conducting cases in Pune, Delhi, Kolkata and other cities in India also. Mahesh Vaswani sir has also supported and helped many advocates during COVID-19. As we know that COVID-19 period was a tremendous suffering period for all the advocate fraternity. He has done a very humanitarian job. So once again I request each and every lawyer and each and every person associated to give a big round of applause to him for that kind work. Now I request Manoj Bhujbal sir to kindly welcome Mr. Mahesh Vaswani sir by giving a flower bouquet as a token of love and appreciation. Can we give a big round of applause for a welcoming? I request our senior advocate Sumit Telge sir to kindly appreciate and give token of love to Mahesh Vaswani sir.
Request respected Mahesh Vaswani sir to kindly deliver the lecture. हे सगळ्यांना मी मनपूर्वक आभार करतो. थोड़ा थोड़ा मैं हिंदी में मराठी मिक्स कर दूंगा तो आपको एतराज नहीं होगा. कोई नहीं, नो प्रॉब्लम. अच्छा, इसके अलावा सर आई एम हाईली ग्रेटफुल ऑल्सो टू राजेश खंडागरे जी, श्री विकी सिंह जी, मिस्टर अंकुश भुले, सागर धोत्रे जी, ये सारे यंगस्टर लोगों ने मिलकर मुझे यहाँ तक लाने का काम किया है. और मेन तो भी आपके अध्यक्ष साहब हैं जो इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं ये काम करने में, एडवोकेट्स लोग को एडुकेट करने में. उसके बगैर हो नहीं सकता था ये मुमकिन. आज का जो मीटिंग है सर, आज 2 टॉपिक्स के ऊपर हम आपको एनलाइटन करेंगे. पहला रहेगा 65B एविडेंस एक्ट. 65B का सबसेक्शन 4 आता है मेन वो एविडेंस एक्ट का. वो आज ऐसा सेक्शन हो गया है कि हर कदम पे आप उसको डिफेंस ऐसा यूज़ कर सकता है कि प्रोसिक्यूशन के केस को उड़ा सकते हैं अच्छी तरह से. क्योंकि आज 50% से ज़्यादा एविडेंस जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आ गया है मार्केट में, मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से. इसी तरीके से दूसरा टॉपिक जो है बेल्स, एंटीसिपेटरी बेल्स और जनरल जो डे टू डे यंगस्टर्स को, वकीलों को कैश पैसा फास्ट कमाने में जो आता है, बेल के अंदर ज़्यादा जल्दी फीस आ जाती है. ट्रायल में थोड़ा स्लो आती है, बेल ABA में थोड़ा जल्दी आ जाती है फीस. क्लाइंट लोग अंदर रहते हैं तो ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं. जैसे डेंटिस्ट के यहाँ अगर दांत में दर्द है तो आदमी पहला पहुँचता है. दांत खराब है, अच्छा है, वो देखता नहीं. दर्द हो गया तो पहला पहुँच जाता है. वैसे आदमी अंदर हो गया या फरार हो गया तो बराबर वकील के यहाँ पहुँचता है. तो मैंने सोचा कि शायद ये टॉपिक जो है ये वकीलों को ज़्यादा काम आएगा, बेल वाला टॉपिक. तो इसके ऊपर आज मैं आप लोग को बताऊँगा. उसमें हमारे तरफ से ना दोनों टॉपिक पर ऐसी एक स्पाइरल सेट बांटी जा रही है, बेल के ऊपर भी और 65B के ऊपर भी. इसमें जजमेंट्स है. जो 65B है उसमें 8 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है लेटेस्ट. तो क्या क्या सब्जेक्ट इंडेक्स है उसका पैराग्राफ नंबर डालते हैं. उसी तरीके से बेल की हमने स्पाइरल बनाई है जिसमें इंडेक्स और रिलेवेंट पैरा इंक्लूड किया. जजमेंट का नाम, डेट ऑफ जजमेंट, कौन से कोर्ट की है, रिलेवेंट पैरा, पेज, इंडेक्स में सारा डिटेल डाला है, पैरा नंबर के साथ. पैरा भी रिप्रोड्यूस किया है. तो इसमें 68 जजमेंट्स है, 68 जजमेंट्स इनका जिस्ट है. और उनका जिस्ट का जो मेन है, जैसे ये 65B, तो इसकी भी 20 कॉपियाँ हम दे रहे हैं जो लाइब्रेरी या कमेटी साहब के पास रहेगा. प्लस ये सारी चीज़ों का हमने PDF भी बनाया है. वो PDF बना के हमने पेनड्राइव पे लाया है, 3 पेनड्राइव पे लाया है, जो चाहेंगे हम अध्यक्ष साहब को ही कर देंगे. तो आपको कंप्यूटर पे डाल के रख सकते हो. प्लस यही चीज़ हमारे पास व्हाट्सएप पर भी है, जो मैं साहब को व्हाट्सएप पर भी दे देंगे हम. तो आपको व्हाट्सएप पर आ सकता है. पूरी की पूरी जजमेंट्स का PDF बना हुआ है, बहुत इजी है और कंडेंस्ड है. तो आप डाउनलोड करके आपको जो जजमेंट चाहिए, जिस टॉपिक पर चाहिए वो टॉपिक पर मिल सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं तुरंत. और मुझे उम्मीद है कि ये जजमेंट्स आपके हाथ लगने के बाद शायद आप में से यहाँ से बेल और ABA के मैटर तो लगभग 90% यहीं पे रिजॉल्व हो जाएंगे, हाईकोर्ट आना कम हो जाएंगे. ये मेरे को उम्मीद पक्की है. और सर ऐसा है, आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो मैंने इनको बताया था, बारडोर के अंदर भी चर्चा हो रही थी. मैंने बताया था कि वर्ल्ड में 4 देश हैं, ये बेल के अलावा पहले बता रहा हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, UK और कनाडा. ये 4 देशों में लॉ की प्रैक्टिस कैसी है पता है आपको? अगर किसी को जूनियर से बात करनी है और ऑफिस में फ़ोन आया है तो उसका क्रेडिट कार्ड कंपनी के कार्ड से मिला हुआ रहेगा और बाय मिनट मीटरिंग होता है, तब जाके बात कर सकते हैं, नहीं तो बात नहीं कर सकते. और इंडिया में करीबन 1000 गुना ज़्यादा लिटिगेशन है और केसेस है, वो पेंडिंग भी है. ऐसा नहीं कि खत्म होते जा रहे हैं, वो बढ़ती जा रही है. लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ के वकीलों के पास किसी
कि एवरेज वकीलों के पास 50 लाख एक करोड़ का बैंक बैलेंस बना हुआ पड़ा है, वो जरा कठिन हो जाता है। उल्टा ऐसी हालत है कि रोज कुआं खोदो पानी पियो, और कई लोगों को और भी कठिनाई हो जाती है। लॉकडाउन में तुमने देखा बहुत बुरी हालत थी वकीलों की। और ये सारी चीज़ों को दूर करने का यही एक तरीका है जो प्रेसिडेंट साहब ने अपनाया है कि लेक्चर सीरीज, जिससे वकील लोग की प्रैक्टिस पे असर पड़े और उनका सक्सेस रेट बढ़े, और सक्सेस रेट से फीस उतनी ज़्यादा आएगी और प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा आने की। तो सर पहले मैं कौन से टॉपिक पे शुरू करूँ? बेल के 65B पर, ठीक है सर। 65B पर चालू करने के पहले मेरे को है ना, वो तो बहुत शॉर्ट टॉपिक है, लेकिन मेरे को आपको इसमें से बताना पड़ेगा। जो मेन सेक्शन है वही मेरे को पढ़ के पहले समझाना पड़ेगा, फिर आपको जजमेंट्स में तो ये मेरे को एक एक उसका सेक्शन का जो पॉइंट पढ़ के आपको एग्जैक्टली समझाना पड़ेगा क्या है, ताकि आपको एक एक चीज़ ध्यान में रहे, आप कहीं भी कोई तक की गलती या लूपहोल ना छोड़ दें। मैं 65B सेक्शन पढ़ता हूँ इंग्लिश में जो है, और हिंदी में आपको या मराठी में समझाने की कोशिश करूँगा। सर 65B बोलता है एविडेंस एक्ट का कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, any information contained in an electronic record which is printed on a paper, stored, recorded or copied in optical magnetic media produced by a computer, hereinafter referred to as computer output, shall be deemed to be also a document if the conditions mentioned in this section are satisfied in relation to information and computer in question, and shall be admissible in any proceedings without further proof or production of the original as evidence of any contents of the original or of any fact as stated therein, which direct evidence would be admissible. इसमें स्टार्टिंग में एक लाइन है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट। इससे यह होता है कि इस एक्ट में और कोई भी सेक्शन में कुछ भी लिखा रहेगा वो सब कुछ साइड करके ये पर्टिकुलर सेक्शन सबसे अलग है। मतलब ये सेक्शन जो है इट इज अ कोड इन इटसेल्फ, मतलब इसके ओवरलैपिंग या ओवरशैडोइंग कोई दूसरा सेक्शन या कोई प्रोविजन ऑफ एविडेंस एक्ट नहीं करता है। अभी आ जाते हैं डायरेक्टली इसका जो सब सेक्शन 4 है जो रिलेवेंट होता है हमारे को ये 65B में सर्टिफिकेट के लिए। In any proceedings where there is desire, where it is desired to give a statement in evidence by virtue of this section, a certificate doing any of the following things, that is to say, identifying the electronic record containing the statement and describing the manner in which it was produced. आपको समझाऊंगा बात 2 मिनट में। B, giving such particulars of any device involved in the production that electronic record as may be appropriate for the purpose of showing that the electronic record was produced by a computer. C, dealing with any of the matters to which the conditions mentioned in subsection B, subsection 2 relate, and purporting to be signed by a person occupying a responsible official position in relation to the operation of the relevant device of the management or the relevant activities, whichever is appropriate, shall be evidence of any matter stated in the certificate, and for the purposes of this subsection, it shall be sufficient for a matter to be stated to the best of the knowledge and belief of the person stating it. ये इतना ही छोटा सेक्शन है। अभी इसका अंजाम क्या क्या होता है, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, अभी आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट में लाना है, हर एक केस में लगभग आजकल वो CDR रिकॉर्ड आ जाते हैं मोबाइल के, चार्जशीट में आ जाते हैं अक्सर, भाई लोकेशन यहाँ था वहाँ था। तो CDR रिकॉर्ड क्या होता है, मोबाइल का लोकेशन, टाइम, कितने बजे, कौन से नंबर पे कॉल गया, तो सर्वर पे रहता है। कंपनी के सर्वर जो बहुत बड़े बड़े होते हैं उनको तो कोर्ट में लाया नहीं जा सकता। इसी तरीके से आपने अगर कहीं पर आते जाते कुछ हत्या होते हुए देख लिया, कोई घटना देख ली, एक्सीडेंट देख लिया और वीडियो क्लिप बना ली और वो पुलिस को भेज दी, तो वीडियो क्लिप भी एविडेंस बन जाती है। लेकिन उसमें फिर पुलिस बोलेगी तुमसे मोबाइल ओरिजिनल है, तेरे ताबियत क्या ने पुरावा लगे है, तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा कि कभी जिंदगी में साबित हो सके। तो इसके लिए ये 65B लाया गया है कि जिसने भी
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का सबूत पेश करने की कोशिश की, हम पेश करना चाहता है, हम पेश कर दिया है, तो उसका 65B के तहत एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सर्टिफिकेट का कोई भी फॉर्मेट नहीं है, कहीं भी कोई फॉर्मेट जरूरी नहीं है। सिंपल भाषा में जैसे हम लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर एग्जेप्शन या अंडरटेकिंग देते हैं या बेल एप्लीकेशन डालते हैं या तो कुछ बेल कैंसिल NPW कैंसिल की एप्लीकेशन डालते हैं, ऐसे ही फॉर्मेट में बना के दे देना होगा सर्टिफिकेट। लेकिन उसमें जो चीज़ें ज़रूरी है वो है कि ये पर्टिकुलर चीज़ मैंने देखी, मैंने वीडियो निकाला, मेरे मोबाइल से निकाला, मैंने निकाल के मैंने मेरे मोबाइल से वो पुलिस ऑफिसर को दिया, या तो ये CDR रिपोर्ट से मोबाइल का है वो कंपनी देगी सर्टिफिकेट के हमारी कंपनी के सॉफ्टवेयर में है, हमने डाउनलोड किया है और पुलिस के हवाले कर दिया। अगर किसी जगह का CCTV फुटेज है, पुलिस को लाना पड़ा है पुलिस स्टेशन का, और पुलिस स्टेशन ने फुटेज ला के दिया है, तो वो फुटेज का सर्टिफिकेट वो पुलिस ऑफिसर देगा जिसने वो CCTV से डाउनलोड करके वो पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क से डाउनलोड करके पेन ड्राइव पे लिया है या CD पे लेके आया है, वो आदमी जिसने डाउनलोड किया है उसका सर्टिफिकेट है। फ़ोन रिकॉर्डिंग है, अगर किसी ने फ़ोन पे किसी को धमकी दे दी या कुछ इलीगल बातें हो रही है या किसी की कुछ वीडियो बन के आ गई है और वो आप देना चाहते हो पुलिस को, तो ये जरूरी नहीं कि आपका फ़ोन में पुलिस ले लेगी सबूत जमा करने के तौर पर। इतना ही है, आपको एक सर्टिफिकेट देना साहब ये मेरे पास आया था, मैं आपको दे रहा हूँ। फिर अगर पुलिस को सर्टिफिकेट को कोर्ट में प्रोड्यूस करना है तो पुलिस ये बोलेगी हमको इन्होंने सर्टिफिकेट दिया था, हमारी पेन ड्राइव से हमने डाउनलोड करके या हमारे मोबाइल से डाउनलोड करके हमारे कंप्यूटर से प्रिंट आउट किया, फिर वो पुलिस का अलग सर्टिफिकेट आएगा। तो ये हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का एविडेंस जिसका देना है उसमें सर्टिफिकेट लगता है। लेकिन उसमें एक चीज़ ज़रूरी है बतानी कि अगर मैं मोबाइल का सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, मेरे मोबाइल पे क्लिप निकाला है, तो वो मोबाइल उस दिन बराबर काम कर रहा था, उसमें कोई मिस्टेक नहीं थी, उसका सबूत नहीं देना पड़ता काम कर रहा था कि नहीं, इतना लिखना पड़ता है नॉर्मल काम का। और किस दिन कौन से तारीख कौन कितने बजे कहाँ पर निकाला वो डिटेल थोड़े डाल देना पड़ता है। इसी तरीके से डाउनलोड किया हुआ CDR है जैसा, या डाउनलोड किया हुआ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट का कोई जजमेंट है या ऑर्डर है कुछ, या कोई वेबसाइट से किसी ने कुछ इलीगल वेबसाइट बना ली है उसका डाउनलोड कर लिया है कुछ, तो वो हमारे को सबूत के तौर पे सर्टिफिकेट के साथ देना पड़ेगा। ये जरूरी है। अभी यहाँ पर एक प्रश्न आ जाता है, अभी हम क्रिमिनल ट्रायल चलाते हैं, अभी काफ़ी तरीके से आप सीनियर हैं, क्रिमिनल ट्रायल के माहिर हैं, और कई यहाँ पे सरकारी लोग भी एक दो हमें मिले थे ऊपर राठौड़ साहब वगैरह। तो ऐसा है कि लगभग हर पॉक्सो या मोलेस्टेशन या 354B या तो रेप, इन केसों में कंपल्सरीली 164 का स्टेटमेंट आता है CRPC का, मजिस्ट्रेट के सामने जो बताया जाता है, या इंपॉर्टेंट केसेस में और भी विटनेसेस का आ जाता है। तो भी ये 164 CRPC का जो स्टेटमेंट है ये 161 के जैसा नहीं, चार्जशीट में जो स्टेटमेंट होता है विटनेस स्टेटमेंट, इसको डायरेक्ट दिखाते हैं कि तुझी सही है, ये जज जी सही केलं ते मजिस्ट्रेट नी बरोबर है एग्जिबिट कर देते हैं। लेकिन एक गलती हो जाती है प्रोसिक्यूशन की, वो कभी भी 65B का सर्टिफिकेट देते ही नहीं है। अब स्टेटमेंट कहाँ हुआ था? मजिस्ट्रेट के चेंबर में। विटनेस बोलता है, फिर्यादी बोलता है कि ये माझी स्टेटमेंट है, ये माझी सही है, मजिस्ट्रेटच्या समोर झाली होती और जो उसका बोलना है वो बोल देता है। अभी मजिस्ट्रेट आएगी, वो बोलेगी साहब हे माझ्या समोर झाला आहे, हे केलं, डाउनलोड कोणी केला होता ते? मॅजिस्ट्रेटने डाउनलोड केला होता, किंवा त्याचा स्टेनोने, किंवा त्याच्या ऑर्डरलीने, किंवा शिपाई तर शक्य नाही, किंवा त्याचा स्टेनो असेल, किंवा त्याचा शिस्तेदार असेल, कोणी असेल, त्याच्या सर्टिफिकेट लागेलच. हा मी डाउनलोड केला होता, माझ्या समोर मी डाउनलोड करून मॅडमला दिला, मॅडमने सही केली आणि नंतर पोलिसकडे गेलो. अशी सर्टिफिकेट कुठे मी पाहिली नाही आतापर्यंत, ट्रायलमध्ये तर नाही पाहिली आतापर्यंत. और ये सर्टिफिकेट 161 स्टेटमेंट को नहीं लगता है. क्यों? कि 161 स्टेटमेंट्स कैनॉट बी पार्ट ऑफ एविडेंस, बट 164 बिकम्स एविडेंस. इट इज कोरोबोरेटेड एविडेंस, मतलब वो एफआईआर के एलिगेशंस को कोरोबोरेट करके है, लेकिन वो डायरेक्ट एविडेंस के लिए एग्जिबिट हो जाता है. इसी तरीके से हर क्रिमिनल केस में, मैंने आज तक ट्राई नहीं किया, लेकिन ये बताते बताते ख्याल आ गया कि हर क्रिमिनल केस में एक एफआईआर जरूर होता है. एफआईआर भी कंप्लेंट को दिखाया जाता है और ये पूछा जाता है कि सर तो दिया है, बरोबर है, मार्क कर दिया जाता है एग्जिबिट. अभी वो एग्जिबिट मार्क करते हैं,
FIR भी आजकल जहाँ तक मेरे को याद है वो हैंड रिटन बंद हो चुका है, कार्बन कापी वाला FIR सब प्रिंट आउट होते हैं और डाउनलोड करके साइन करके देते हैं। उसमें भी किसी का 65B सर्टिफिकेट नहीं होता है। मैंने आज तक तो नहीं किया क्रॉस में ऐसा, लेकिन आज के बाद पक्का करने वाला हूँ। और जहाँ तक लॉ की बात है तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है लॉ की, उसके हिसाब से ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को पक्का 65B सर्टिफिकेट लगता है, उसके बगैर वो एग्जिबिट नहीं हो सकता है अगर डिफेंस काउंसिल ऑब्जेक्शन ले लेता है तो। अगर ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो ऐसा है कि आपके ऊपर कोई एग्जाम आ गया और आपने डिनाई नहीं किया तो एडमिटेड हो गया। तो इसलिए ऑब्जेक्शन लेना बहुत जरूरी है। जो ट्रायल स्टेज पे ऑब्जेक्शन नहीं लिया वो अपीलेट स्टेज पे वैलिड नहीं रहता है। तो पहले ऐसा था 2000 के टाइम पे जब पार्लियामेंट बम ब्लास्ट हुआ था, पार्लियामेंट का ब्लास्ट हुआ था, सिविल ब्लास्ट पार्लियामेंट के अंदर, तो वो एक जजमेंट आई थी संधू की 2005 में, जिसमें था कि जो लोगों ने वीडियो देख के बताया ये आरोपी वो है, उसको एविडेंस मान के वो चलाया गया था। फिर 2014 में लॉ बदली हो गया कि अगर वीडियो में 4 जन दिख रहे हैं और उसका पड़ोसी आके बोलता है हाँ ये ABC मेरे पड़ोसी है, मैंने देखा है, मेरे सामने इन्होंने ये वीडियो में जो कर रहे हैं मैं पहचानता हूँ, भले घटना मेरे सामने नहीं लेकिन मैं जानता हूँ, मैं उस टाइम बाहर गया था, तो वो एविडेंस नहीं माना जाएगा वीडियो में पहचानेगा तो भी दैट इज नॉट एविडेंस। नॉर्मल एविडेंस होता है कि स्टेटमेंट जो कोर्ट में उसने बयान दे दिया चीफ ने, वो एविडेंस बन गया, क्रॉस की बाकी होती थी, तो ये चीफ ही वैलिड नहीं होता है जब तक वो वीडियो फुटेज का CCTV का या जो भी चलाया गया कोर्ट में उसका 65B सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका ओरल एविडेंस का वैल्यू खत्म हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि 65B एविडेंस एक्ट जो है ना वो इट इज़ अ कोड इन इटसेल्फ, वो अलग कोड ही है टोटली, और उसको कोई दूसरा सेक्शन ओवर रूल नहीं करेगा। तो अगर विटनेस ने बोला भी है और उसको चीफ के बाद क्रॉस में डिनाई भी नहीं किया है तो वो अगर वीडियो देख के बोला कि हाँ वीडियो पति है तो वो बात एविडेंस नहीं माना। इतना सिंपल चीज़ है। एक चीज़ जरूर याद रखनी कि आपको ऑब्जेक्शन जो लेना है वो कंपल्सरीली आपको ट्रायल के टाइम ही लेना है और राइटिंग में ही लेना है। फिर अगर वो कोर्ट उसको एविडेंस मान लेती है तो अपीलेट स्टेज पे उड़ जाएगा, उसका फिर एविडेंस नहीं माना जाएगा। ठीक रहेगा सर? अभी सर मैं आपको शॉर्ट में जजमेंट्स का डिस्कशन कर लेता हूँ, सबको मिल गया होगा एक सेट दोनों का एविडेंस एक्ट का वगैरह का हो चले हो मुझे हाथ नहीं रहेगा। एक सेकंड सर, आ रही आवाज मेरी? सर जी पहले अभी हम जजमेंट खोल लेते हैं, अगर आपको कंफर्टेबल है तो नहीं भी खोलूँगा मैं समझा दूंगा बहुत सरल भाषा में ही। मेरे को ऐसा कोई भी लेक्चर नहीं बनाने का है जिससे आप बोर हो जाना है, समझिए तो कॉलेज की बोरिंग लेक्चर है या यूट्यूब पे देख के बोर हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते, वैसा लेक्चर नहीं चाहिए। आप लोग समझ के ही जाना चाहिए यहाँ से, और उसके बाद आपको कोई प्रश्न रहेंगे हर एक प्रश्न के लिए हम तैयार हैं उत्तर देने को, क्लैरिटी के लिए। सर ये पहली जजमेंट जो है जो इसमें मैंने अटैच की है ये लैंडमार्क जजमेंट है, जिसके बाद पूरा लॉ बदल गया था। ये 2014 की थी जजमेंट। ये अनवर PV वर्सेस PK बशीर करके जजमेंट है। अंडर सेक्शन 65B4 द एविडेंस एक्ट इफ इट इज डिजायर्ड टू गिव अ स्टेटमेंट, तो इसमें 4 कंडीशंस है जो सेटिस्फाई करनी चाहिए। द सर्टिफिकेट मस्ट बी विच आइडेंटिफाइज द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंटेनिंग द स्टेटमेंट्स। जैसे अगर 164B का 164 CRPC का स्टेटमेंट है और वो प्रिंट आउट लिया हुआ है, हैंड रिटन नहीं है, तो कंपलसरी वो प्रिंट आउट के साथ सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि उसमें स्टेटमेंट है, ये लागू हो जाता है। इसके अलावा बाहर जा नहीं सकता वो डॉक्यूमेंट। अगर वो ऑब्जेक्शन लिया तो वो मेरे हिसाब से उसको चीफ भी एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। दूसरा है सर्टिफिकेट मस्ट बी इन द मैनर इन विच द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वॉज प्रोड्यूस्ड, मतलब सर्टिफिकेट मस्ट डिस्क्राइब द मैनर, मतलब सर्टिफिकेट में लिखना चाहिए कि कैसा प्रोड्यूस किया था। अभी जैसे अगर मेरे पास कोई व्हाट्सएप पे एक डॉक्यूमेंट आया हुआ है, मेरे को यूज़ करना है कोर्ट के अंदर, या फोटो है किसी का, तो मैंने मेरे कंप्यूटर पे प्रिंट किया ब्लूटूथ से मोबाइल से, तो एक्जैक्टली जैसा कि वही लिख डालने का सिंपल भाषा में। तो मैंने मेरे मोबाइल पे था, ऑफिस में जाके वायर से कनेक्ट किया मोबाइल को USB कॉर्ड से, कंप्यूटर पे डाउनलोड करके मैंने मेरे ऑफिस के प्रिंटर पे डाउनलोड कर दिया। मतलब वो चेन पूरी होनी चाहिए, कैसा वो डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से कोर्ट तक आया, वो पूरा कंडीशंस दिया गया है।
तीसरा कंडीशन है सर्टिफिकेट मस्ट फर्निश पर्टिकुलर्स ऑफ द डिवाइस इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ दैट रिकॉर्ड। तो सर्टिफिकेट मस्ट फर्निश पर्टिकुलर्स ऑफ द डिवाइस, मतलब मोबाइल था मेरा, अगर डिटेल है तो सैमसंग था या वन प्लस था, जो भी कंपनी का था वो डाल देने का। अगर उसका IMEI नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो जरूरत नहीं है। जितना डिटेल कम डालोगे उतना क्रॉस में कम झेलना पड़ेगा। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है कि गैजेट का डिस्क्रिप्शन दो, तो उस हिसाब से सैमसंग है, एप्पल है, जो भी गैजेट है उसका डिटेल और मोबाइल है वो डाल देने का। और फिर मोबाइल से हमने कंप्यूटर से प्रिंट किया या डायरेक्ट प्रिंटर पे ब्लूटूथ लगा के किया तो वो बस हो जाता है। ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। द सर्टिफिकेट मस्ट डील विथ एप्लीकेबल कंडीशंस मेंशन अंडर 65B(2) ऑफ एविडेंस एक्ट। वो 65B(2) में रूटीन कंडीशंस है वो कि भैया मेरा गैजेट वर्किंग था, उस दिन चालू था, ये था, मैं वहाँ था, मैंने किया। इसी तरीके से 65 द सर्टिफिकेट मस्ट बी साइंड बाय द पर्सन ऑक्यूपाइंग रिस्पॉन्सिबल पोजीशन इन रिलेशन टू द ऑपरेशन ऑफ द रिलेवेंट डिवाइस। अगर आपका इंडिविजुअल डिवाइस है तो आपने साइन करके देना। अगर किसी और कंपनी में आप काम करते हो और आपने ऑफिशियली यूज़ करके प्रिंट आउट किया तो आपके कंपनी का जो आपको पोस्ट में आप ऑथोराइज हो यूज़ करने का उसका प्रूफ देके डालने का। या अगर आपने साइबर कैफे से करवाया तो उसका सर्टिफिकेट ले लो कि आपके यहाँ पे आकर हमने करवाया था। तो ये जनरल चीज़ें हैं, ये याद रखिए। लेकिन Today we had the pleasure of witnessing respected Sri Mahesh Vaswani sir, Advocate High Court, who has enlightened us on 65B of Evidence Act 1872 and Law of Bail. Not only that, I thank you sir on behalf of Bar Association of Panvel for providing chart of important judgment both on 65B of Evidence Act and Law of Bail. Sir, you have spared your valuable time from your busy schedule to impart this knowledge to all of us. Despite of heavy rain in Mumbai and waterlogging, your compilation of judgment will really help all of us. Your desire to pass on knowledge to lawyers is really appreciable, sir. Sir, your assurance to help the advocates at any time, even on your mobile phone, is very encouraging to us, sir. So, I really thank you on behalf of Advocate Manoj Bhujbal, President Panvel Bar Association, who has taken special efforts to conduct this particular program here. Thereafter, Advocate Sandeep Jaggi, who is Vice President, Advocate Prahlad Khokkar, Secretary, Advocate Seema Goyal, Joint Secretary, Advocate Dhanraj Tokre, Treasurer, Advocate Sushant Garat, Advocate Vishal Mundkar, and other executive committee members. Sir, we thank you. I personally appreciate your desire and efforts to pass on all the knowledge you have and to give maximum to all the advocates which we do not see in coming present scenario here. So that is very appreciable. I thank on behalf of Bar Association Panvel, and we hope that you will frequently come to us and impart your knowledge to all the advocates. Thank you very much, sir. सर अभी आपने हमारे मराठीत पण चालेल. कमाल रख के आप आ गए, हमारे जूनियर लोगों को बहुत अच्छे बढ़िया आपने ये किया, आपको कैसा लगा? तो पहला तो मैं आभारी हूँ मनोज भुजबल साहब का और तेलगे साहब का और यहाँ के जो हैं मेन दिग्गज लोग जैसे विक्की दूर सिंह, राजेश खंडागरे जी और सारी मैनेजिंग कमेटी का, जिनका नाम नहीं भी लिया हो मैंने, कि मेरे को मौका दिया इतना अच्छा एक्सपोजर देने का कि मैं लोगों पे काम आ सका। मेरा एक ही हित है लेक्चर में कि सारे वकील प्रॉस्परस होना मांगता है, उनकी कामयाबी इतनी होनी चाहिए कि यहाँ के जितने बेल ऑर्डर्स हैं लगभग 90% यहीं पे उनके फेवर में आने चाहिए और उससे कोई किसी का नुकसान नहीं था। वकीलों की प्रॉस्पेरिटी और ट्रेनिंग ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भुजबल साहब ने जो
सुविधा दी है उसका मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इतना कर दिया और बहुत अच्छा लगा। आगे और अच्छा लगेगा मेरे को। एक 8-10 दिन बाद अगर कमेटी से पता चलेगा कि वकीलों को वाकई फ़ायदा हो रहा है उससे, जजमेंट मिलेगा। थँक्यू सर. थैंक यू वेरी वेरी मच। मॅडम, तुम्हाला आजचा जो लेक्चर साहेबांचं झालं ते कसं वाटलं तुम्हाला? तुम्ही काही सांगू शकता? It was a fantastic experience with respect to the provisions of 65B of Information Technology Act and its usage in day-to-day life and in the court proceedings for all the advocates and entire legal fraternity. Also, the lecture on the bails and custody of Sridhar and with respect to marital rape, which amounts to rape, the provisions and the judgment which he has enlightened us with, they were very full of knowledge and information which can be utilized in our day-to-day proceedings of the court, and we can plead in a much better way. दादा सर, तुम्हाला कसं वाटलं आजचं लेक्चर? खूप चांगलं अतिशय सुंदर खरगे साहेब, तुम्ही काय बोलू शकता? व्याख्यान जे आहे आणि सरांना केलेले मार्गदर्शन जे आहे डे टू डे लाईफमध्ये सर्वांना उपयोगी येणार आहे. त्यामुळं सरांचे मानाव तेवढे धन्यवाद. धन्यवाद. ओके. दाखवा जरा बंद करू. नाही, येईल सकाळी येईल. आज दिनांक 8/9/2023 रोजी जे काही पनवेल वकील बार संघटनेने पनवेलमधील नवोदित वकिलांसाठी, त्याचप्रमाणे सेशन कोर्टामध्ये जे वकील प्रॅक्टिस करतात त्या वकिलांसाठी महत्त्वाचे असे क्रिमिनल मॅटरवरती ॲडव्होकेट महेश वासवानी सर यांचं जे काही लेक्चर सिरीज म्हणजे हे केलेलं होतं, ऑर्गनाईज केलेलं होतं, ते अतिशय चांगले झाले. याचा फायदा एक असा होणार आहे की याचा फायदा जे आज त्यांनी काही आम्हाला मार्गदर्शन केलं, त्याचप्रमाणे आज जे काही आम्हाला वेगवेगळे केस लॉ दिले, त्या केस लॉचा फायदा हा नक्कीच दैनंदिन कामामध्ये येथे प्रॅक्टिस करणाऱ्या वकिलांना, त्यानंतर नवोदित वकिलांनासुद्धा होणार आहे. तर असेच लेक्चर्स वेगवेगळ्या विषयावरती पनवेल बार वकील संघटना यांनी भविष्यातसुद्धा करावे असं माझं एक स्वतःचं मत आहे. तर आजचं जे लेक्चर झालं त्याबद्दल मी पनवेल वकील बार संघटना यांचे आभार मानतो. तसेच आजच्या कार्यक्रमाला वासवानी सर जे आले, त्यांनी जे मार्गदर्शन केलं त्यांचंसुद्धा मी आभार मानतो. एवढेच मी माझे शब्द संपवतो. ओके, जय हिंद, धन्यवाद. जय महाराष्ट्र.